Good morning. Welcome all of you. Let us start today with a grammar section. Now as you all know that we had already done the parts of speech, figure of speech and few of the transformations like active passive voice and compound complex simple, its explanation and various sentences. Here today we move ahead with the transformation of sentences, some other part, that is affirmative, negative, assertive, question tag, interrogation, etc. But first let us take the transformation of affirmative sentence to negative and vice versa. Now, affirmative sentence means, now what does this affirmative sentence means? It will be always a positive sentence. Negative is always naturally, negative sentence in grammar will always include some words like, you can just as a hint, it starts from N. So let's take, but it should be a negative word, that is not, none, never, nothing. Sometimes you have to attach nothing but and no. So no one, no other, it could be in this form. So all these are negative words. Now when you move from affirmative to negative, you add one negative word, right? One negative word we add plus opposite of a word in affirmative sentence, right? So once again, when you move from affirmative to negative, we have to use any one of this negative word, but along with that we will use the opposite of one word in affirmative sentence so that the meaning doesn't change. So important rule is meaning should not change, right? Now, apart from this, so let us take one very simple example. If I say I am happy, this becomes your naturally affirmative sentence, that is positive. When you move to negative, it becomes I am not happy. If I write, it becomes wrong. This is wrong. So what have I to write is I am. अब एक नेगेटिव वर्ड तो यूज़ करना ही होगा नेचुरली. सो आई एम नॉट और हैप्पी का ऑपोजिट यहाँ पे अनहैप्पी. राइट, दिस इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस. एज वी मूव अहेड you will come to know how to make use of these various words and the opposite of one word from affirmative, right? So those rules I will be providing you. तो वो ध्यान से तुम्हें याद रखना होगा. पहले समझ लो फिर याद रखना, right? So one more, like she is, you can say kind. चलो अभी थोड़े सिंपल ले लेते हैं तो इजी होगा. वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, शी इज़ काइंड. तो ये नहीं लिखोगे शी इज़ नॉट काइंड, ये वंस अगेन गलत हो जाएगा, राइट? सो व्हाट डू वी से इज लाइक दिस, शी इज़, नॉट तो लगाना ही है, नॉट अनकाइंड, ऑपोजिट लगा दो. एफर्मेशन में
एक वर्ड तो ऐसा होगा जिसका ऑपोजिट निकल रहा है. हाँ, समटाइम्स सम सच वर्ड्स में नॉट अपीयर इन योर एफर्मेटिव सेंटेंस. कभी ऐसे हो भी कि भाई एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड होगा ही नहीं जिसका नेगेटिव निकले. तो इन दैट केस वी कैन यूज other words which are fixed for it, right? So let's move ahead once again with some. Okay, if it is now say negative, negative से तुम्हें आना है towards affirmative. Again pattern will be same, but slight थोड़ा बदलाव नेचुरली वो तो होगा ही. सो दैट इज सेम. यू कैन टेक सम एग्जाम्पल, सिंपल वन. शी इज नॉट सैड. चलो, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो शी is happy. तो तुम ये भी लिख सकते हो यहाँ से लाइक आई एम हैप्पी. तो सैड की जगह पे ऑपोजिट अनहैप्पी भी लिख सकते हो, या मतलब सैड, नॉट सैड इज हैप्पी, बट इफ शी इज सैड इट मीन्स अनहैप्पी. तो तुम्हें सिर्फ एक वर्ड पिकअप करना है जिसका ऑपोजिट तुम लिखोगे, राइट? तो सैड का ऑपोजिट क्या होगा? नेचुरली हैप्पी. बट यहाँ पे ऑलरेडी नॉट है जो हम यहाँ पे निकाल देंगे. सो व्हेन यू फ्लिप द सेंटेंस, लेट अस टेक सम सेंटेंस फ्रॉम योर इटसेल्फ दैट शी इज नॉट अनकाइंड. चलो यहीं पे जो है वो ले लेते हैं. तो नॉट वी विल रिमूव, अनकाइंड का ऑपोजिट बाकी एज इट इज. शी इज, नाउ व्हाट विल राइट? अनकाइंड का ऑपोजिट शी इज काइंड, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैरी फॉरवर्ड विथ ऑल दिस एफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू एफर्मेटिव. तो जैसे यहाँ पे वन मोर वी कैन टेक. शी इज नॉट अगली. तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे ले लो, शी इज तो लिखना ही है, नॉट हम निकाल देंगे. अब बचा अगली. अगली का ऑपोजिट हम लिखेंगे शी इज ब्यूटिफुल, right? And one more you can take, that he is not weak. You can take he is, जैसे वैसे लिखेंगे, not कट कर दो, और weak का opposite he is strong. But one thing I would like to tell you is that do not change the meaning in the sentence. So don't change the meaning of the sentence and don't change even the tense of the sentence. It will remain as it is. So once again, simple, affirmative to negative, negative to affirmative. अगर नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव वर्ड यूज़ करना है प्लस वन वर्ड का ऑपोजिट फ्रॉम एफर्मेटिव. जैसे आई एम हैप्पी तो आई एम नॉट लगा दो और हैप्पी का ऑपोजिट लिखना है अनहैप्पी. लेकिन अगर लिखोगे आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी तो मतलब बदल जाएगा
और अगर नेगेटिव टू एफर्मेटिव जाना है तो नॉट निकाल के एक वर्ड का ऑपोजिट. बट ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और इवन डोंट चेंज द टेंस. राइट? Let us see now some more sentences of affirmative to negative. So the rules of affirmative to negative, you will have to go through. You can even jot it down in your notebooks, and so that before exam you can just go through it, and you will it will become easy, I would say, for you if you just note it down later on. So first, at present, just listen carefully, understand it, and then you can write it down, and for that you'll have to go through this video again naturally. Now the first rule is sentences with words like only, alone. अगर कोई सेंटेंस में तुम ये या only या alone होते हैं तो you will change it to none but. I'll give you examples also, don't worry. Yeah, you can use nothing but, or we can use not more than, या तुम यूज कर सकते हो not less than. Clear? So the first rule is related to affirmative to negative. अगर negative to affirmative है, suppose हम उल्टा जा रहे हैं, vice versa, तो इन वर्ड्स की जगह पे तुम only या but कोई भी एक यूज कर सकते हो. At present let us move from affirmative to negative. तो ये फर्स्ट रूल के लिए I will provide you one example, and that is a brave man alone can do this. तो ये हो गया तुम्हारा एफर्मेटिव, राइट? दिस इज एफर्मेटिव. लेट्स मेक इट नेगेटिव. अब जैसे तुमने वर्ड देखा अलोन, तो हम वर्ड अब कौन सा यूज़ करेंगे? विच वन यू विल यूज़? फ्रॉम दिस यू विल हैव टू पिक अप, राइट? बट यू कांट जस्ट राइट एनी, क्योंकि नथिंग इज फॉर थिंग, सो यू कांट यूज. नन मतलब नो वन, तो नन दैट इज फॉर समवन, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं. तो अ ब्रेव मैन alone can do this. So you can use none but a brave man can do this. तो alone की जगह पर हम यूज करेंगे none but a brave man can do this. Clear? So this becomes your negative sentence. चलो एक और लेते हैं so that it becomes easy for you. I need a book only. देखो यहाँ पे alone था, we picked up none but, we are talking about a human being. यहाँ पे I need a book only, a book or the book or one book, you can write any. So I need a book only. Once again, this is your affirmative sentence, right? We move on to negative. अब यहाँ पे थिंग आ गया, कोई चीज़ है, तो नेचुरली आई विल पिक अप नथिंग. क्लियर? आई नीड, यू कैन राइट आई नीड no one but a book only, right? Because that is this. Alone we used none but. Only I am using nothing. Book के बारे में बात हो रही है. So I need
nothing but a book. Now don't write again only, क्योंकि only की जगह पे हमने nothing लगा दिया है. So I need a book only, मतलब सिर्फ बुक चाहिए. तो नेगेटिव हो गया, बुक के अलावा कुछ नहीं चाहिए. I need nothing but a book. Clear? Then one more, let's take a very simple exercise of affirmative to negative. तो एक सिंपल सेंटेंस भी ले सकते हैं हम. I need 10 rupees only. I need, or you can say I need 10, anything you can say. चलो ले लेते हैं rupees only, 10 textbooks only, 10 notebooks only, anything you can pick up. So once again affirmative. So अब यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, इतनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4, तो ऐसे 10 रुपीज़ बस ओनली, मतलब इससे ना ज़्यादा ना इससे कम. तो तुम लिख सकते हो आई डोंट नीड मोर देन, आई नीड लेस देन 10 रुपीज़. नो, अगर लिखोगे आई नीड मोर देन 10 रुपीज़ तो भी गलत. तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई नीड नो, तो ये हो जाएगा गलत. डायरेक्टली यू can't write every time I need. You will have to frame a bit differently, because you are going to use some other word over here that is not more than. So I don't need more than 10 rupees. Clear? Then one more. Now let's take an example of some other, that's a second rule. Let's take second rule indeed. That is must have to can बन जाएगा cannot but. तो क्या यूज़ करेंगे? या तो must है तो cannot but यूज़ करोगे, या अगर दिस स्लैश मीन्स दिस इज़ वन, फिर और एक, जैसे ओनली या अलोन, उस ये दो में से कोई भी एक वर्ड आए तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड्स. उसी तरह से मस्ट हो या हैव टू या फिर कैन, तो हम यूज़ करेंगे वर्ड्स दैट इज कैन नॉट बट. तो ये लर्न करना है. अब चलो चेक कर लो इसके एग्जाम्पल. तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, दैट इज यू हैव टू ड्रिंक या यू मस्ट ड्रिंक, ऐसे भी लिख सकते हैं. बट यू कैंट राइट दिस वे, यू कैन ड्रिंक क्लीन वाटर. बट ये तीन में से कोई भी एक हो तो तुम कैन नॉट बट यूज कर सकते हो. सो यू have to drink clean water. ये हो गया एफर्मेटिव. अब इसे बनाएंगे नेगेटिव, तो वर्ड्स तो फिक्स है, कैनॉट बट. यू कैनॉट बट ड्रिंक क्लीन वाटर. यू कैनॉट बट drink clean water. So this becomes your negative. This is also over here 10 rupees wala wo tha. These are all your negative, right? So once again
एफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू एफर्मेटिव, तो नेगेटिव टू एफर्मेटिव तो हम करेंगे नहीं क्योंकि वो एग्जैक्टली फ्लिप करना है. बट तो तुम एक सीधा रास्ता पकड़ लो, ऑलवेज मूव राइट हैंड साइड, कि लेफ्ट में है एफर्मेटिव, तुम राइट में जा रहे हो नेगेटिव की तरफ. तो अगर एफर्मेटिव में ओनली या अलोन है तो हम यूज़ करेंगे कोई भी इसमें से एक, बट डोंट पिकअप ऑफ योर चॉइस, लेट इट बी दी ग्रामेटिकली जो राइट है वो यूज़ करेंगे. तो नन बट, नथिंग बट, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन. और सेकेंड हमने देखा था मस्ट, हैव टू या कैन. इसमें से एक वर्ड आ जाए तो यहाँ पे तो फिक्स ही है कि तुम कैन नॉट बट ही यूज़ करोगे फॉर ये तीन में से जो भी आए. राइट, अंडरस्टूड अप टिल हियर? नाउ लेट्स मूव अहेड टू आवर third part, third rule. Now the third rule that we are going to move ahead with is, so rule number 3, right? That is related to your words like and, both. Now these words will become in place of this, any one of this. You can use the words like, not only, but also. Right? So now the words like not only but also we will use in place of and, yeah, both. Whenever I put a slash, it means any one word you will use. But the moment I write without any slash, it means the whole part you will write. तो and की जगह पे तुम लिख सकते हो not only but also, या फिर अगर both हैं तो तुम लिख सकते हो नेगेटिव सेंटेंस में not only but also. So let's see, that is your example. First, he ate fruits and vegetables. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ड्स लाइक ही एट नॉट ओनली फ्रूट्स बट ऑल्सो वेजिटेबल्स. राइट, तो कोई भी एक वर्ड आ जाए एंड या बोथ, कोई भी एक होना चाहिए एफर्मेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव में ये पूरा लिखोगे. राइट, सो ही एट नॉट ओनली फ्रूट्स एंड की जगह पे फिर but also vegetables. He ate not only fruits but also vegetables. Clear? So your affirmative and negative. Now the fourth rule. So we did 3 rules up till now. Your first rule was only या alone आए, कोई भी एक वर्ड इसमें से होना चाहिए, not दोनों नहीं, only या alone. तो हम यूज़ करेंगे वर्ड्स लाइक none but या nothing but, or you can use not more than, or you can use not less than. सेकेंड रूल हमने किया था, अगर मस्ट या हैव टू या कैन, कोई भी ये तीन में से एक वर्ड देखो तो यू हैव टू यूज़ कॉमन, एक वर्ड हो, 2 वर्ड कॉमन होंगे यहाँ पे, कैन नॉट बट, लाइक यू हैव टू ड्रिंक क्लीन वाटर और यू मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर, तो उसकी जगह पे यूज़ करेंगे हम यू कैन नॉट बट ड्रिंक क्लीन वाटर. फिर थर्ड रूल हमने देखा, he ate fruits and vegetables. He ate not only fruits but also vegetables. Right?
नाउ नेक्स्ट, फोर्थ रूल, एवरी। यहाँ पे ये सिंगल वर्ड है एवरी, उसकी जगह पे हम यूज करेंगे देयर इज नो, देयर इज नो डॉट डॉट बट। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, वैसे यहाँ पे यूज करेंगे एवरी की जगह पे देयर इज नो और डॉट डॉट बट। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं, इजी हो जाएगा समझना। एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड। ठीक है, तो ये हुआ एफर्मेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेचुरली देयर इज नो डॉट डॉट बट, देयर इज नो मदर बट लव्स हर चाइल्ड। देयर इज नो मदर बट लव्स हर चाइल्ड, या चिल्ड्रन लिख सकते हो। हमने यहाँ पे चिल्ड्रन लिया है तो चिल्ड्रन, चाइल्ड है तो चाइल्ड लिख लेना। ठीक है, नाउ देन नेक्स्ट इज इफ इट इज एवरीबडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो तुम्हें ध्यान रखना है। इफ इट इज एवरीबडी एफर्मेटिव सेंटेंस में है तो वो हमेशा बनेगा everybody will become, दिस इज एफर्मेटिव, तो ये बनेगा नेगेटिव में nobody। लेकिन nobody सिर्फ नहीं लिखेंगे, फिर उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? प्लस ऑपोजिट ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है, वर्ब या एडजेक्टिव का हम ऑपोजिट लेंगे और नोबडी भी ऐड करेंगे, तो ये बन गया तुम्हारा नेगेटिव। दिस यू हैव टू रिमेंबर वेरी परफेक्टली। लाइक, चलो एग्जाम्पल यहाँ पे भी ले लेते हैं। एवरीबडी लाइक्स फ्लावर्स, और यू कैन से, चलो कुछ अच्छा और भी लिख सकते हैं। एवरीबडी लव्स हॉलीडेज, है ना, लंबी वाली छुट्टी, हॉलीडेज जो अभी एंजॉय कर रहे हो। सो दिस इज एफर्मेटिव। अब जैसे ही तुमने एवरीबडी देखा, हम क्या लिखेंगे? नोबडी। लेकिन एक वर्ब या एडजेक्टिव का ऑपोजिट लिखेंगे, तो यहाँ पे हॉलीडे का ऑपोजिट तो है नहीं। एवरीबडी की जगह पे नेगेटिव में एज अ रूल वी विल राइट नोबडी। अब बचा क्या? लव्स, तो उसका ऑपोजिट हम क्या लिखेंगे? हेट्स। ठीक है, नोबडी हेट्स हॉलीडेज, तो ये बन गया नेगेटिव। अगर इसी की जगह पे होता से लाइक्स, तो मैं लिखती डिसलाइक्स। ठीक है, लाइक एवरीबडी लाइक्स फ्लावर्स, नोबडी डिसलाइक्स फ्लावर्स। तो यहाँ पे एवरीबडी का नोबडी, लेकिन फिर एक वर्ब या एडजेक्टिव का ऑपोजिट लिखना होगा, बाकी के वर्ड कॉपी डाउन, राइट। इफ यू हैव अ लेंदी सेंटेंस, काफ़ी लेंदी तो नहीं होगा, राइट। नाउ वन मोर वी कैन टेक ओवर योर इज, सो ये हुआ तुम्हारा फिफ्थ। चलो और एक ले लेते हैं, वैसे तो काफ़ी हैं, but slow and steadily we can move ahead. That is, here we can take one
part that is, so we saw up till now this 5 rules. Now let's move ahead with our 6th rule, and that is always in affirmative will always become never. मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि everybody बन गया nobody प्लस ऑपोजिट ऑफ अ वर्ब या एडजेक्टिव. उसी तरह से द वर्ड ऑलवेज अगर देखो तो वो बन जाएगा ऑलवेज इन एफर्मेटिव, राइट. विल बिकम नेवर प्लस ऑपोजिट, वन ऑपोजिट वर्ड तो लिखना ही होगा, प्लस ऑपोजिट वर्ड. क्लियर. तो चलो एग्जाम्पल लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज़ योर एफर्मेटिव, दिस इज़ योर नेगेटिव. तो हम ले सकते हैं आई एम ऑलवेज अगेंस्ट, यू कैन से एनीथिंग, आई एम ऑलवेज अगेंस्ट wasting of time, right? Example, I am always against, या थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं, I am always against unhealthy food. So this is your एफर्मेटिव, राइट. नेगेटिव कैसे बनाएंगे? ऑलवेज की जगह पे क्या लिखेंगे? नेवर और एक ऑपोजिट वर्ड. तो हम लिखेंगे अगेंस्ट का ऑपोजिट. आई एम, ऑलवेज की जगह पे नेवर, और एग्जैक्टली उसके बाद के वर्ड का हम ऑपोजिट बनाएंगे. तो आई एम नेवर इन फेवर ऑफ, फिर तो जैसे लिखना है वैसे, आई एम नेवर इन फेवर ऑफ अनहेल्दी फूड. क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर पार्ट, that is some more examples and some more rules. So up till now we did till 6 rules. Now we move on to the 7th one. Now these are some like universal truth. So your 7th will be universal truth related. Like, चलो पहले तो लिख लूँ रूल क्या है. यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल बहुत सारे ट्रूथ्स हैं तो लिखते हैं ट्रूथ्स आर ऑलवेज चेंज्ड इनटू, ऑलवेज इंटरोगेटिव फॉर्म. Interrogative, but it will be interrogative negative sentence. Clear? तो चलो देखते हैं. Universal truths are changed into interrogative negative. Like for example, first we can take just like affirmative, knowledge इज पावर. तो ये हुआ एफर्मेटिव, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये एफर्मेटिव. तो इसका हम बनाएंगे इजंट नॉलेज, इजंट नॉलेज पावर. तो इंट्रोगेटिव भी बना, नेगेटिव भी बना, राइट. तो ये तो कंपलसरी होगा, ऐसे ही बनेगा ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स. लाइक ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी,
Isn't honesty best policy? Clear? Then we move on to, चलो लिख भी देते हैं ये एग्जाम्पल तुम्हारा. One more. Honesty is the best policy. अब इसे कैसे लिखोगे इस एफर्मेटिव को? Isn't honesty the best policy? नेगेटिव. अब यहाँ पे कोई ए द ऐसा कुछ था नहीं, तो हमें सिर्फ कॉपी डाउन करना है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है. अब यहाँ पे ध था तो मैंने लगाया ध. यू हैव नॉट टू ऐड और डिलीट एनी अदर सच वर्ड. द सिंपल थिंग, यूनिवर्सल ट्रुथ को अगर नेगेटिव बनाना है तो इट्स वेरी सिंपल, उसे बना दो. अगर यहाँ पे इज है तो बना दो नेगेटिव. क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना है और लास्ट में हम डालेंगे क्वेश्चन मार्क. क्लियर? सो इट बिकम्स इंट्रोगेटिव. नाउ वन मोर दैट वी मूव ऑन टू इज दैट मेनी एफर्मेटिव कैन बी चेंज इनटू नेगेटिव बाय यूजिंग द वर्ड नॉट और एक ऑपोजिट वर्ड लाइक. और हाँ, ये याद रखना है, अगर तुम टेंस बदलोगे तो मतलब तब भी बदल जाएगा. तो जहाँ जहाँ पे ऑपोजिट वर्ड की ज़रूरत है वहाँ पे ऑपोजिट तो लगाएंगे. लाइक सिंपल, आई मिस द ट्रेन, तो मिस का ऑपोजिट हम लिखेंगे ऐसे, आई कुडंट कैच द ट्रेन. क्लियर? तो ये हुआ तुम्हारा 8th रूल. 8th रूल सेज दैट एफर्मेटिव टू नेगेटिव की तरफ जाते हुए you will make use of not और उसके साथ opposite word, right? So as I told you that many affirmative can be changed into negative by using a negative word not और एक opposite. तो एग्जाम्पल भी मैंने तुम्हें बताया कि I miss the train, तो यहाँ पे हम लिखेंगे I could not catch the train. ठीक है? सो वन इज एफर्मेटिव और ये बन गया नेगेटिव बाय यूजिंग नॉट और ऑपोजिट. क्लियर? अब समटाइम बनेगा नॉट ऑलवेज, राइट? तो लिखते हैं 9th रूल. द वर्ड समटाइम्स जो एफर्मेटिव है वो बनेगा नेगेटिव में नॉट ऑलवेज. बन गया नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, द पुअर आर समटाइम्स, तो आ गया वर्ड समटाइम्स. द पुअर आर समटाइम्स हैप्पी.
द पुअर आर समटाइम्स हैप्पी, तो ये बना एफर्मेटिव। नेगेटिव बनाएंगे द पुअर, हमें यूज करना है नॉट ऑलवेज, आर नॉट ऑलवेज, बस यहीं पे ध्यान रखना है। द मोमेंट यू यूज द वर्ड नॉट कहीं पे भी, जैसे तो हर एक के लिए तो दूसरे वर्ड थे, यो वी विल राइट वन ऑपोजिट वर्ड, राइट। अनहैप्पी भी लिख सकते हो, द पुअर आर समटाइम्स हैप्पी, या डायरेक्टली भी लिख सकते हो द पुअर आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। क्लियर, बन गया नेगेटिव, ठीक है, राइट। अनहैप्पी दैट ऑल्सो डजंट गो रॉन्ग, बट आई वुड लाइक टू से कि जो रूल्स मैंने यहाँ पे सजेस्ट किए हैं वो परफेक्टली फॉलो करते जाओ। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ जो मैंने अभी बताया तुम्हें, यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या करोगे, चेंज इनटू ऑलवेज इंट्रोगेशन, लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन बनेगा, राइट। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, इजंट ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। फिर एक है जहाँ पे हम सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगा के एक ऑपोजिट वर्ड डालेंगे। नेक्स्ट इज समटाइम्स देखो तो ऑलवेज नॉट ऑलवेज यूज़ करना है, नॉट ऑलवेज मैं बता रही हूँ कि हमेशा तुम्हें समटाइम्स की जगह पे नॉट ऑलवेज यूज़ करना है। क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द 10th रूल, दैट इज रिलेटेड टू मैनी विल बिकम नॉट अ फ्यू, राइट। अगर वर्ड देखो एफर्मेटिव में मैनी, तो नेचुरली वो बनेगा नॉट अ फ्यू। तो आई डोंट हैव मैनी, anything you can write, I don't have many pens, or I don't have many rupees, I don't have many dresses. Clear? चलो, I don't have many ड्रेसेस। अब यहाँ पे मैंने लिया पहले नेगेटिव, तो इस तरह से भी समझ लो, इट इज़ ईजियर टू जस्ट फ्लिप इट। आई डोंट हैव मैनी ड्रेसेस, तो कैसे लिख सकते हैं, आई हैव फ्यू ड्रेसेस, ठीक है। और अगर ऐसे दिया है, जैसे हमेशा मैं पहले एफर्मेटिव लिखती हूँ, तो अगर इससे ऊपर ले लो, मतलब तो वही रहेगा, आई हैव फ्यू ड्रेसेस, तो बन जाएगा नॉट फ्यू, राइट। मैनी का बनेगा नॉट फ्यू, या फ्यू का बनेगा नॉट मैनी। यू कैन राइट ईदर वे, लाइक सी। लेट मी मेक इट वंस अगेन क्लियर। अगर मैनी है तो नॉट अ फ्यू, नॉट मैनी है, वन मोर, चलो 2 लेते हैं तो तुम्हें थोड़ा ठीक से समझ में आ जाएगा। नॉट मैनी है तो क्या करोगे, फ्यू, मतलब दिस इज एफर्मेटिव टू नेगेटिव, ये है नेगेटिव टू एफर्मेटिव। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि मैनी के साथ फ्यू ही जाएगा। अब अगर मैनी नेगेटिव है तो फ्यू पॉजिटिव रहेगा, और अगर मैनी पॉजिटिव है तो फ्यू नेगेटिव बनेगा, विच इज मेड वेरी क्लियर ओवर हियर। आई हैव फ्यू ड्रेसेस, तो आई डोंट हैव मैनी ड्रेसेस, राइट। आई हैव मैनी ड्रेसेस, आई डोंट हैव फ्यू ड्रेसेस। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट we move on to one more rule, and that is your 11th rule, right? So 11th rule says that TOO, ये हमने पहले एक बार किया है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में। द मोमेंट यू सी TOOT, और वहाँ पे मैंने ये समझाया था कि ये एफर्मेटिव है
तो सो डॉट डॉट दैट लगा के बन जाएगा, एक नेगेटिव वर्ड यूज़ करके बना दो नेगेटिव सेंटेंस। और वैसे भी ये TOO2 एंड TO2 मीन्स सिंपल सेंटेंस। द मोमेंट वी यूज सो डॉट डॉट दैट इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, ये रिमूव टू भी बन रहा है, ये यूज सो डॉट डॉट दैट भी बनेगा, या फिर एफर्मेटिव टू नेगेटिव भी बन रहा है। सो द सेम सेंटेंस कुड बी आस्क्ड बाय योर मैम इन स्कूल इन 4 डिफरेंट फॉर्म। तो चलो एक फॉर्म यहाँ पे हम और एक देखते हैं। TOOTO की जगह पे यूज, you will go towards so dot dot that plus cannot plus verb, right? अब यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो सो एज आई टोल्ड यू कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम यूज़ करेंगे कैन नॉट। बट द मोमेंट इट इज़ पास्ट टेंस, तुम्हारा कोई सेंटेंस दिया है ट्रांसफॉर्म करने, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कुड नॉट, राइट? बाकी तो एज इट इज़ ही रहेगा। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल, इट विल बिकम क्लियरर टू यू। He is too weak to walk. बन गया एफर्मेटिव, राइट? दिस इज एफर्मेटिव प्लस प्रेजेंट टेंस। अब ये हम बनाएंगे TOO डॉट डॉट TO की जगह पे हम लिखेंगे सो डॉट डॉट दैट, और प्रेजेंट टेंस है इसलिए कैन नॉट प्लस एक्शन वर्ब। तो लिखेंगे ही इज, टू की जगह पे सो, फिर डॉट डॉट की जगह पे वो ही वर्ड है जो है वो ही, तो डॉट डॉट तो चेंज होगा नहीं। ही इज सो वीक, TO की जगह पे दैट, वॉक का वॉक ही रहेगा, लेकिन उसके पहले क्या लगाना है, दैट he cannot. And why cannot? Because it is present tense, right? So this is how we move ahead. तो TO की जगह पे so, TO की जगह पे that, डॉट डॉट रहेगा वैसे ही, एक्शन भी वैसे ही रहेगी, सिर्फ उसके आगे cannot यूज करना है अगर प्रेजेंट टेंस है, could not लगाऊंगी अगर past tense है। Clear? Now, one more, that is our 12th rule. Now, the 12th rule will tell you about as soon as, right? So, the moment you see the words, now this is again complex sentence also, as soon as, affirmative बन जाएगा नो सूनर, डिड भी लिख सकते हैं द वे द सेंटेंस इज प्रोवाइडेड टू यू, या हैड लिखें, यहाँ पे हम लेंगे नो सूनर हैड देन, क्योंकि नो सूनर के साथ तो देन होना ही है। दिस इज वॉट वी विल यूज, राइट? तो एफर्मेटिव टू नेगेटिव ऐसे लिखेंगे। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। आई थिंक सो यू आर क्लियर विद द प्रीवियस वन कि कैसे 4 टाइप के क्वेश्चन सेम सेंटेंस से बन सकते हैं। TOO ऑलवेज सो डॉट डॉट दैट प्लस कैन नॉट प्लस एक्शन अगर प्रेजेंट टेंस, अच्छा सो डॉट डॉट दैट प्लस कुड नॉट प्लस एक्शन अगर वो पास्ट टेंस है। अब यही क्वेश्चन अभी हमने किया एफर्मेटिव टू नेगेटिव, उसी को हम कह सकते हैं रिमूव TOO2, तब भी ये बनेगा। अगर मैं कहूँ बनाओ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तब भी यही बनेगा, राइट? या यूज सो डॉट डॉट दैट, तो भी यही बनेगा। तो दिस आर दी 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स, राइट?
of the same sentence. अलग तरीके से पूछ सकते हैं. अब इसी को एक और जो मैं रूल करवा रही हूँ, दैट इज एज सुन एज से नो सूनर हैड डॉट डॉट देन. द मोमेंट यू आर आस्क्ड एज सुन एज एफर्मेटिव टू नेगेटिव, तो हमेशा उसकी जगह पर हम नो सूनर हैड यूज करेंगे. ठीक है, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं. एज सुन एज भी हम कॉम्प्लेक्स में यूज करते हैं, नो सूनर भी, राइट. और दोनों एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के पार्ट हैं. अब यहाँ पे एग्जाम्पल, एज सून एज he came, as soon as he came, the students stood up. चलो ये हुआ एफर्मेटिव, राइट. एज सुन एज, इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे. टेक द हिंट ओवर योर, नो सूनर हैड डॉट डॉट देन. तो नो सूनर, द मोमेंट एच वर्ड याद है, वॉइस में हमने किया था, हैड, हैज, हैव. द मोमेंट यू यूज हैड, तो तुम्हारे एक्शन बन जाएगा थर्ड वर्ब फॉर्म, राइट. तो कम, केम, कम. कम इज फर्स्ट, केम इज सेकेंड वर्ब फॉर्म, और उसका थर्ड वर्ब फॉर्म होगा अगेन कम. तो नो सूनर हैड ही कम, देन कॉपी डाउन, देन the students stood up. So this becomes your negative. बट याद रखना है कि हैड यूज करो तो भी थर्ड वर्ब फॉर्म, लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, दिस इज ऑल्सो नॉट wrong, you can use this also if it is easier for you. No sooner did he, no sooner did he come, same, then the students stood up. अब यहाँ पे जो कम है, हैड के साथ नोट, रिमेंबर इट्स एन इम्पॉर्टेंट नोट, हैड, हैज, हैव के साथ यहाँ पे हैड यूज कर रहे हैं, बट हैड, हैज, हैव के साथ ऑलवेज थर्ड वर्ब फॉर्म ऑफ एक्शन दैट इज गिवन, थर्ड वर्ब फॉर्म. ठीक है, ऑफ यहाँ पे है केम, एग्जाम्पल. और अगर हम डिड यूज करते हैं तो डिड के साथ ऑलवेज प्रेजेंट दैट इज फर्स्ट वर्ब फॉर्म, मतलब प्रेजेंट टेंस, राइट. तो यहाँ पे जो हैड है उसके साथ जो कम है वो थर्ड वर्ब फॉर्म है, लेकिन डिड के साथ जो मैंने कम यूज किया वो है फर्स्ट वर्ब फॉर्म. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. हर बार फर्स्ट और थर्ड वर्ब फॉर्म सेम नहीं होंगे हर एक एक्शन के लिए. इट कुड बी डिफरेंट फॉर्म ऑल्सो, लाइक डू, डिड, डन, कम, केम, कम, राइट. तो कम कम सेम हो गया, बट रिमेंबर ये डिफरेंस जो है यहाँ पे ये नोट करना है कि अगर हैड, हैज, हैव है तो हमेशा एक्शन थर्ड वर्ब फॉर्म होगा, और डिड के साथ हमेशा तुम फर्स्ट वर्ब फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस यूज करोगे एक्शन का. क्लियर? देन वन मोर वी कैन पिक इट अप ओवर योर is if I am using say as dot as. So this is the last rule. You can say if we use the word as
plus adjective, that is as clever as beautiful as tall as plus adjective plus as, तो वो हुआ तुम्हारा एफर्मेटिव. नेगेटिव में जाते हुए तुम लिखोगे नॉट लेस प्लस जो एडजेक्टिव है वही लिखोगे एंड डॉट डॉट देन, तो बन गया नेगेटिव. सो एफर्मेटिव टू नेगेटिव. क्लियर? जैसे यहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो एग्जाम्पल. You can take the example, say for example, Rahim. Yes, or Ram. You can take Ram, Rahim, Karan, anything. Ram is as clever as Karan. मतलब दोनों इक्वल हैं. ये बाद में डिग्री में हम पढ़ेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट वी आर डूइंग एफर्मेटिव नेगेटिव. तो एज एडजेक्टिव एज, तो हम लिखेंगे दैट राम इज नॉट लेस, राइट, और नॉट लेस क्लेवर देन करण. दोनों इक्वल है, राइट. सो राम इज एज क्लेवर एज करण. तो द मोमेंट यू सी एज एडजेक्टिव एज, तो हम लिखेंगे राम इज नॉट लेस क्लेवर, जैसे यहाँ पे मैंने बताया नॉट लेस क्लेवर देन करण. So these are the 13 rules of affirmative to negative. Jot it down in your notebook. For this you'll have to see second time. या अगर टफ लग रहा है तो बता देना, ठीक है ना. तो PDF भेज सकते हैं हम आपको, बट बिफोर दैट थोड़ा हार्डवर्क अपनी ओर से भी कर लो. अगर तुम करोगे तो याद रहेगा परफेक्टली द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग डाउन द रूल्स. सिर्फ तुम्हें रूल्स लिखने हैं, यू आर नॉट गोइंग टू राइट ऑल द एग्जाम्पल्स एंड ऑल, ठीक है. फिर इसमें थोड़े एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो बाद में देखेंगे. आफ्टर 1 or 2 more sentences that I'll provide you, like she is as tall as them. तो she is not less tall than them. तो इतना याद रखना है कि as प्लस एडजेक्टिव प्लस as मतलब एफर्मेटिव. नेगेटिव बनाना है तो नॉट लेस प्लस एडजेक्टिव डॉट डॉट then. Understood up till here? So as I told you, few more rules over here, but these sentences are going to be exceptional, right? Now exceptional मतलब कि थोड़े हटके होंगे. Like 3 forms I will show you over here of exceptional sentences. Where there is smoke, there is fire. अब ये है affirmative, एक भी negative word नहीं है. इसे हम नेगेटिव बनाएंगे एंड एज इट इज प्रेजेंट टेंस यू विल यूज कैन. देयर कैन बी नो स्मोक, तो हमने यूज किया नो, और कैन. देयर कैन बी नो स्मोक विदाउट फायर, तो मतलब नहीं बदलना है, राइट. मीनिंग विल रिमेन सेम. यू कांट चेंज द मीनिंग वाइल ट्रांसफॉर्मिंग. सिमिलरली सेकेंड इज ऑलमोस्ट डाई, तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा. लाइक यू कैन से नन कैन एस्केप डेथ, तो बन गया नेगेटिव. और द थर्ड एंड द लास्ट एक्सेप्शनल केस इज आई कम हियर फॉर द लास्ट टाइम. आई कम हियर फॉर the last time. Affirmative. Negative लिखोगे I will never come here again. Got it?
So these are some of the exceptional cases of affirmative to negative. और अगर नेगेटिव टू एफर्मेटिव डालना है तो वाइस वर्सा कर लेना है, और तो कुछ नया करना नहीं है इसमें. नाउ लेट्स सॉल्व सम एग्जाम्पल्स ओवर योर, थोड़ा क्लियर हो जाए तुम्हारे लिए. सो सम एक्सरसाइज. क्लियर. द फर्स्ट वन, ही इज ऑनेस्ट. तो अब तुम्हें बनाना है वंस अगेन affirmative to negative. सो या अगर नेगेटिव टू एफर्मेटिव आ जाए तो भी तुम्हें कैसे करना है चेक कर लो. फर्स्ट इज ही इज ऑनेस्ट. तो ये हुआ एफर्मेटिव. बनाएंगे नेगेटिव तो क्या करना है, सिंपल, टेंस नहीं बदलेंगे. ही इज, सिंपल नॉट लगा दो और एक वर्ड का ऑपोजिट. ही इज नॉट डिसऑनेस्ट. राइट, सिंपल. सेकेंड, आई विल नेवर फॉरगेट यू. अब ये हुआ नेगेटिव टू एफर्मेटिव. आई विल never forget you. तो नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव तो ऑलरेडी दे दिया है, तो हम बनाएंगे अब इसे एफर्मेटिव. आई विल नेवर का ऑलवेज. आई विल ऑलवेज, ऑपोजिट ऑफ फॉरगेट, रिमेंबर. रिमेंबर यू. ठीक है. नाउ वन मोर. वैसे तो काफ़ी होंगे और वन मोर टू मोर नहीं, बट लेट्स मूव अहेड विथ. अभी एक हमने किया वेयर देर इज फायर देर इज स्मोक. सो वेयर देर इज नो फायर, ऐसे लिखा था. क्या लिखा था, वेयर देर इज फायर देर इज स्मोक. हमने कौन सा बनाया था, वेयर there is smoke, there is fire. There can be no smoke without fire. ठीक है. तो वैसे ये सेंटेंस है थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है, तो वही मीनिंग, where there is fire there is smoke. There is no fire without smoke. क्लियर. तो चलो लिखते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. एंड देन यू कैन कंपेयर बोथ. where there is fire there is smoke. तो ये हुआ एफर्मेटिव. हम बनाएंगे इसका नेगेटिव. तो नेगेटिव क्या बनेगा, वेयर देर इज फायर देर इज स्मोक का देर इज नो फायर विदाउट smoke. There is no fire without smoke. Clear? चलो one more. He is the best student. Right? ये आ गया डिग्री वाला, लेकिन हम कर रहे हैं एफर्मेटिव टू नेगेटिव. तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट. राइट. तो हम क्या लिख सकते हैं इसका नेगेटिव. नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नो अदर स्टूडेंट, नो अदर स्टूडेंट is so good as him. यहाँ पे तुम एज भी लिख सकते हो. राइट. एंड चलो वन मोर, वन राउंड फिगर बनाते हैं. तो
we can take one question that is, as soon as the teacher arrived, the noise stopped. As soon as the teacher arrived, the noise stopped. ये हुआ एफर्मेटिव. हम बनाएंगे नेगेटिव, राइट. नो सूनर, हमने क्या अभी पढ़ा था? नो सूनर had the teacher arrived then the noise stopped. No sooner or had plus third verb form. So no sooner had the teacher arrived, क्योंकि पास्ट भी अराइव्ड है यहाँ पे, ये पास्ट है, और थर्ड वर्ब फॉर्म भी अराइव्ड है, तो एच के साथ तो हमेशा हमें थर्ड वर्ब फॉर्म ही लेना है एक्शन का. तो यहाँ पे पास्ट दैट इज सेकेंड वर्ब फॉर्म एंड थर्ड वर्ब फॉर्म आर सेम, तो हम पास्ट नहीं लिख रहे हैं एच के साथ, हम अराइव्ड का थर्ड वर्ब फॉर्म अराइव्ड. सो नो सूनर हैड द टीचर अराइव्ड, बीच में यूज करना है नो सूनर के साथ. देन द नॉइज स्टॉप. कॉपी डाउन. So this becomes your negative. Up till this many sentences, please move ahead, work hard, keep on repeating the grammar sessions, and please jot it down in a notebook. एक अलग ग्रामर की 100 पेजेस की, ज़्यादा मोटी भी मत बनाना, नहीं तो टेंशन हो जाएगा, हाय मुझे पूरी फिलअप करनी है ग्रामर से. बट लेट इट बी फ्यू पेजेस वाली एक 100-200 पेजेस की बुक बना दो. सारे वर्कशीट फिर से सॉल्व करना शुरू कर दो जो आगे अब तक भेजें. फ्रॉम अप्रैल एंड या मई से हमने जो ग्रामर स्टार्ट किया था, जो वर्कशीट्स भेजी थी, सिंपल नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट कर लो, रिवीजन भी होता जाएगा. नेक्स्ट, रूल्स लिखते जाओ अपने हिसाब से, द वे दैट यू फाइंड इट ईजी फॉर यू. तो हर एक बच्चे के लिए अलग फॉर्मेट होगी, मतलब रूल्स तो वही होंगे जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, लेकिन हर एक बच्चा उनको क्या इजी लग रहा है उस हिसाब से तुम लिखना स्टार्ट कर दो. एंड सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज, कीप ऑन रिपीटिंग द ग्रामर रूल्स एंड एक्सरसाइजेस. एंड नेक्स्ट टाइम वी कंटिन्यू with transformation, but a new part that is assertive, interrogation, exclamatory, question tag. So till then इसको पक्का कर लेना, and we meet very soon. Thank you so much. Take care. Thank you.